Hello friends, how are you? I wish all are fine. Welcoming to you Kanva Gurukul YouTube channel. Last time discussed the Chitrapadani second part 1, 2 and 3. Chitrapadani second is clear and over. Today, now start new lesson number 3, part number 1. The title is Atma Shraddhayaha Prabhavah. Atma Shraddha, effect of Atma Shraddha, self-confidence. Atma Shraddha, self-confidence. Prabhav means effect. Full translation is effect of self-confidence. Self-confidence is very essential, very important in life. This point has been explained clearly by the example of Eklavya. You know Mahabharat story. Mahabharat story in one part of Eklavya. Eklavya is self-confidence and Guru आज्ञा. एकलव्य गुरु की आज्ञा के अनुसार काम करता था और इसके लिए मोर वेरी इम्पोर्टेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एकलव्य. द स्टोरी प्रेजेंट स्टोरी इज एकलव्य एंड कौरवा. महाभारत स्टोरी पार्ट ऑफ द few part of the Mahabharat stories. Start the story upon your textbook, page number 11. First, most important in languages, भाषा में महत्वपूर्ण है अपनी किताब. किताब में देखे बगैर ट्रांसलेशन या वर्ड मीनिंग और ग्लोसरी हमें आती नहीं है. तो फर्स्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड आई रीड द लाइन बाय लाइन एंड आफ्टर ट्रांसलेशन एंड वेरी हार्ड वर्ड्स मीनिंग. तो आप सब अपने पुस्तक में बराबर attentively listen one by one words or sentences after translation. Let's go and start the story of effect of self-confidence. Atma Shraddhayaha Prabhav. Ekah balakah आसीतः. ગુજરાતીમાં જેને કહીએ એક બાળક હતો. આસિત ये अस धातु रूप. अस मीन्स टू. ए ट्रांसलेशन इज टू टाइप. अस धातु ट्रांसलेशन इन रूपावली फॉर द प्रेजेंट टेंस अस्ति. अस्ति मीन्स इज एंड आसित मीन्स वॉज. तो अस रूपावली, अस धातु and roop for the asit. Asit means was and asti is. एक बालकः आसीतः. Once there was a boy. Once there was a boy. एक बच्चा था. तस्य नाम एकलव्यः आसीतः. तस्य नाम, हिज नेम. तो
हिज नेम वॉज एकलव्य, उसका नाम एकलव्य था। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म। स्म रूप, ये स्म रूप प्रेजेंट टेंस, स्म रूप इज द meaning for the present tense, but स्म रूप past tense, meaning for past tense। स्म शब्द जहाँ भी लगता है वहाँ ये संस्कृत की चमत्कृति, जिन्हें संस्कृत भाषा का इम्पोर्टेंस कहते हैं, कि इम्पोर्टेंट में स्म शब्द लगने से आगे जहाँ स्म रूप के पीछे जो स्म लगता है, पठितुम इच्छति स्म, तो स्म लगने से when the suffix स्म is added to any present tense from the meaning changed to the past tense। This thus ichhati means desire and wish, desire and wish। So desired, sma means desired, when the suffix sma added to any present tense change the meaning for the past tense। Roop for the ichhati sma is present tense roop, but meaning for the past tense। This is the very important संस्कृत लैंग्वेजेस रूप। ये संस्कृत भाषा के रूप के अंदर अत्यंत जिन्हें बोलते हैं जरूरी है। तो सह धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति स्म, ही विश्ड टू लर्न आर्चरी, आर्चर, धनुर्विद्या, आर्चरी। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत अवदत् च, ए रूप फॉर अगच्छत। तो एडेड एडेड द रूप इज पास्ट टेंस रूप, अगच्छत पास्ट टेंस रूप। आनी आव आम, ए सफिक्स फॉर द आनी आव आम, तम त तु ताम अंतु। And present tense roop, last time discussing the present tense roop, mi vah mah, si tha ta, ti ta anti। 3 type of the number, 3 type of the tense, 3 type of the persons, and 3 type of the genders in Sanskrit languages। 3 type of the tense, present tense, past tense and future tense। 3 type of the person, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। 3 type of the numbers, singular, dual and plural। 2 type of a padda, a परस्मय पद्दा and आत्मनेय पद्दा in a Sanskrit language। तो अगच्छत एडेड अ, फर्स्ट अ, लास्ट तो सफिक्स एंड ए धातु वर्ब गच्छ, गम गच्छ, गम मैन इज गम, ए ऑर्डर फॉर द गच्छ। अ त सफिक्स अगच्छत, जाना। तो स धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति स्म, एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत अवदत् च। च मीन्स एंड। ये च शब्द संस्कृत में किसी चीज को जोड़ने के लिए च शब्द, मीनिंग फॉर द एंड। एकदा, वंस अपॉन टाइम। तो वंस ही वेंट, अगच्छत मीन्स वेंट। वंस ही वेंट टू नियर द्रोणाचार्य एंड said गुरुदेव, ओ टीचर्स, ओ गुरु, अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि। आई ऑल्सो विश टू बिकम ए स्किल्ड आर्चर, आर्चरी। कृपया माम स्वीकुरु। एंड
I also wish to become skilled archery. Kindly accept me. कृपया माम स्वीकुरु. Kindly accept me. आचार्य प्रत्यवदत. The teacher replied. प्रत्यवदत मीन्स प्रत्यवदत, सामने कहना, बाद में. तो द टीचर्स रिप्लाइड अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. तो गुरुदेव द्रोणाचार्य ओनली टीच टू द कौरव एंड पांडव. ही इज बाय कास्ट क्षत्रिय. तो द्रोणाचार्य ओनली education give to the kshatriyas boys. तो he also ask कृपया अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि. मैं केवल कौरव और पांडव को ही पढ़ाता हूँ. आई टीच कौरव एंड पांडवांस. अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि. मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता. कैसे? शिष्य रूपेण, शिष्य के रूप में आपका स्वीकार नहीं हो सकता. तो बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू एज माई स्टूडेंट. परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत. तो आचार्य के सामने की उसकी जो कर्तव्य था, श्रद्धा था, फेथ, वो क्या हुआ? लेस नहीं हुआ. डू नॉट बिकम लेस इन फेथ फॉर द टीचर्स. तो बट हिज फेथ टुवर्ड्स हिज गुरु डिड नॉट become less. Student, but his faith towards his guru did not become less. तो उन्होंने बोला मैं शिष्य के रूप में नॉट एक्सेप्ट ऑन माई स्टूडेंट. मैं मेरे स्टूडेंट के स्वरूप में आपका स्वीकार नहीं कर सकता. तो मुझे किस प्रकार? तो हिज फेथ इज डू नॉट बिकम लेस इन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस में जरा भी आंच नहीं आई. उसने कैसे गुरु के सामने नहीं गया तो कैसे उसने विद्या प्राप्त की? वो पार्ट नंबर 2, लास्ट टाइम डिस्कस पार्ट नंबर 2 एंड लेसन 3 पार्ट 2. अगले बार जब मिलेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे. यहाँ तक आपको ये इंट्रोडक्शन बराबर ध्यान रखना है. लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर इसकी ग्लोसरी, ये हार्ड वर्ड्स मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग लिखना है और रफ कॉपी में आपको क्या ट्रांसलेशन करना है. गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण.